پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو ذر معظم۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایف ای سی سی نے عید کی طویل تعطیلات کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ایف ای سی سی کا کہنا ہے کہ پاکستان یومیہ 11 ارب روپے کی برآمدات کرتا ہے، 10 دن میں 110 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومت عید تعطیلات میں کمی کرے۔ فیڈریشن ہاؤس نے این سی او سی کے اعلان کردہ عید کی طویل تعطیلات کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں یہ اہم اور بڑا فیصلہ جو کہ کیا گیا عید کی تعطیلات کے حوالے سے، اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ اشرف خان سے مزید جانتے ہیں۔ اشرف بتائے گا تعطیلات جو عید کی ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے؟ جی، حکومت کی جانب سے جو عید کی لمبی تعطیلات دی گئی ہیں 9 سے 10 روز جو ہیں، اس کی وجہ سے بینکس بند ہوگا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے کاروباری حضرات کو ہوگا، صنعتوں کو ہوگا۔ فیڈریشن ہاؤس کے صدر ناصر حیات مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کیا میسج ہے حکومت کو جانتے ہیں۔ سر، یہ 10 روز کی بندش کا کیا امپیکٹ ہوگا اور برآمد کنندگان کون سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟ یہ بالکل ان کا غلط فیصلہ ہے۔ ان کو تو چاہیے پورٹ بینک 24 گھنٹے کھلے ہونے چاہیے، ایسنشیل سروسز میں ڈالیں۔ جیسے ایئرپورٹ کھلا ہوتا ہے، ہاسپٹل کھلا ہوتا ہے، وہاں تو چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کو بہت شدید ضرورت ہے اپنے بزنس کی اور اسٹاک فارن ایکسچینج کی۔ $68 ملین کا روز ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ان کو میری سمجھ میں نہیں آتا ان کے کون پالیسی میکرز ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب، اگر ہم دیکھیں $68 ملین کا جب آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کا، تو روز کا پاکستانی روپے تقریباً 11 ارب روپے کا امپیکٹ پڑا ہے۔ 10 روز بند ہو تو 110 ارب روپے کا اگر آرڈر منسوخ ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان؟ دیکھیں 110 ارب تو یہ روز کا ہے نا، اس کے بعد جب اس کا امپیکٹ اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ جب بند کر دیتے ہیں کام تو سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو چلانے میں اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ ان کو یہ چاہیے کہ بھائی اب یہ سیریس ہوں، اس ملک کی بات دیں، چھٹیوں کا کلچر ختم کریں اور جو بھی ایس او پیز کے ساتھ کام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، فیڈریشن ہاؤس کے صدر نے صاف مطالبہ کر دیا حکومت سے کہ لمبی تعطیلات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، پورٹ ہو، بینک ہو، یہ سب کھلے رہنے چاہیے۔ اور یہ بھی کہا ہے پیغام کہ اگر ایک دن بند ہوتا ہے اور جو برآمد کنندگان تقریباً 11 ارب روپے روز کا جو امپیکٹ پڑتا ہے، اس کا اگر آرڈر نہیں گئے بر وقت تو ملک کی معیشت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارب روپے کا روزانہ نقصان ہوگا، اسی لیے تعطیلات کا اعلان جو ہے مسترد کیا۔ بہت شکریہ اشرف۔ ادھر ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے بھی عید تعطیلات کو مسترد کر دیا ہے۔ جنرل سیکرٹری ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن جاوید بلبانی نے حکومت سے عید کی طویل تعطیلات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت جاوید بلبانی کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی حبیب، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ بالکل، وفاقی حکومت اور این سی او سی کے جانب سے جو ہے وہ عید تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں 9 سے 10 روز جو ہے وہ تعطیلات کے اعلان کیے گئے ہیں، جس میں تمام تر جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کو نہ صرف کراچی چیمبر آف کامرس بلکہ ایکسپورٹرز کی جانب سے بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے ویلیو ایڈڈ سیکٹر ایکسپورٹ سے وابستہ، ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں، ایکسپورٹرز کے ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بھی ہیں جاوید بلبانی صاحب۔ سر، اس وقت جو ہے وہ لمبی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے، ایکسپورٹرز کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ایکسپورٹر تو ویسے ہی پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہیں ویسلز ویسے کم آ رہے ہیں، کنٹینرز کا الگ پرابلم ہے، اور جتنا مال شپ ہونا چاہیے اس سے کم ہو رہا ہے، اور اوپر سے یہ چھٹیاں ہو جائیں گی تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بلکہ گورنمنٹ کو اس وقت جو پوری دنیا میں ایمرجنسی ہے، ہاسپٹلز میں ادھر ادھر کورونا کی وجہ سے، تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حساب سے سب چیز کھلی رکھنی چاہیے، چھٹیاں تو کرنی نہیں چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب چیز، پورٹ بھی کھلے ہونے چاہیے، بینکس بھی کھلے ہونے چاہیے، اور ہر چیز کھلی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، ایئرپورٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ اپنے طور پہ کھلا رکھیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حساب سے کام کرائیں۔ اگر یہ لاک ڈاؤن لگتا ہے اور یہ جو تعطیلات کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ روز کا جو ہے 11.5-12 ارب روپے کا پاکستانی نقصان ہے، تقریباً 68 سے 70 ملین ڈالر کا نقصان ہے پر ڈے۔ جی بالکل، جیسا آپ نے سنا کہ جاوید بلبانی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ معیشت ہے، ایکسپورٹرز ہیں، اور خاص طور پہ جو فورن ریزروز ہیں ان کو اس وقت نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ایکسپورٹرز کو ان 10 دنوں میں جو ہے مکمل کام کرنے کی اجازت۔ شکریہ حبیب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ادھر وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے کیا ریلیف مل سکتا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اقدامات ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہماری اس وقت کنڈیشنز ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ان سے ریلیف مانگنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے سر، یہ مہنگائی کے بھی بول دیں سر، انفلیشن جو ہے وہ 1.5 سال کی بلند سطح پہ پہنچ گئی، اس کی ریزن کیا ہے، کیسے کنٹرول؟ یار یہ بیس افیکٹ ہے۔ یہ پچھلے سال میں اس وقت انفلیشن جو تھی وہ گر گئی تھی، تو ابھی
इतनी की उतनी इन्फ्लेशन 2% से दिख रही है, बढ़ रही है, बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इन पे सारे एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे वेडनेसडे को बताऊंगा। उधर कराची में आटा मुल्क भर से महंगा हो गया है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इसकी क्या वजह है, जानेंगे वकास हसीन से। वकास बताएगा इस कदर क्यों महंगा हो गया कराची में आटा? जी, यहाँ पर सरकारी सतह पर इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि कराची में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए तक हो चुका है, जो कि रावलपिंडी के मुकाबले में तकरीबन 440 रुपए तक महंगा है, जबकि इस्लामाबाद के मुकाबले में 430 रुपए तक महंगा है। और कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सरगोदा की निस्बत तकरीबन 280 रुपए महंगी है। इस वक्त कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि गुजरावाला के मुकाबले में 230 रुपए, सक्कर, मुल्तान, सियालकोट की निस्बत 220 रुपए महंगा है, जबकि बन्नू के मुकाबले में 200 रुपए महंगा है। इसी तरह हैदराबाद के शहरी जो है मुल्क में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1280 रुपए तक पहुंच चुकी है। खुजदार में 20 किलो आटे का थैला 1270 में, जबकि क्वेटा में 1250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पिशावर लाड़काना में इसकी कीमत 1160 रुपए तक है, जबकि फैसलाबाद में 20 किलो आटे का थैला की कीमत 1133 रुपए तक पहुंच चुकी है। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची के यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें चीनी और आटे के लिए परेशान हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल आवाम को यूटिलिटी स्टोर के जरिए सस्ती चीनी और आटे समेत 19 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की नवीद सुनाई गई, मगर आवाम तवील कतारों और इंतजार की सूली पर लटकते रहे। परेशान हाल शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। सारा वक्त इसी यहीं लग जाता है, तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग जाता है। बड़ी मुश्किल से चीज़ें दस्तियाब होती हैं, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी का है। आज आए, आज भी कुछ नहीं है, खड़े खड़े बस सुबह से थक गए। मैं बीमार हूँ, पालज का मरीज़ हूँ, इस हालत में भी खड़े हैं, वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। हो गए तो 3-4 कलाक हो गए, मिले भी नहीं राशन, शाम को आटा बाटा भी नहीं मिला, चीनी भी नहीं मिला है। बस ये हम गरीब लोग बैठे हुए। हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान तो किया गया, मगर इसके लिए मतलूबा मंसूबा बंदी नहीं की गई, जिसके बायस स्कीम के समरात अवाम तक ना पहुँच सके। रमजानुल मुबारक में आटे और चीनी पर यूटिलिटी स्टोर के जरिए आवाम को सब्सिडी दी गई थी, मगर रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है, मगर इस यूटिलिटी स्टोर के फ़वाइद आम इंसान तक नहीं पहुंच सके और लोग घंटों तवील कतारों में आटे और चीनी का इंतज़ार करते रहे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची में गोल्ड मार्क 2 को सील कर दिया गया है। 330 दुकानों पर मुश्तमिल गोल्ड मार्क को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समीन नवाज। समीन बताएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद में मार्केटों में आना यकीनन कोविड के लिए जो है वो खासा ख़तरनाक साबित हो रहा है लोगों के लिए, और लोगों के कोविड में मुब्तला होने के ख़तरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम डिफेंस में गोल्ड मार्क मॉल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर ईद की ख़रीदारी के लिए एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए इस वक्त दोनों मॉल्स को सील करने का अमल शुरू कर दिया है। ये मॉल सील किए जा रहे हैं। जो शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए थे उनको वापस घर भेजा जा रहा है, और इस बात की यकीन दहानी करवाने की कोशिश की गई थी कि जो भी खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करेगा उनको SOPs यकीनी बनाए जाएंगे। मास्क इस्तेमाल किया जाएगा, सैनिटाइजर्स जो मॉल के गेट पर रखे गए हैं उसका इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। खास करके समाजी फासले की जो थी सिचुएशन वो बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रही थी, लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अब ये मार्केटें सील कर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो खरीदारी के गर्ज से आए थे और अब इन मॉल से बाहर निकाले जा रहे हैं और इस मार्केट को सील किया जा रहा है। इससे कबल भी सदर के इलाके में मार्केटें सील कर दी गई थी और वहाँ पर भी SOPs के खिलाफ वर्जी पर वो तमाम तर मार्केट्स और दुकानें बंद करा दी गई थी। आज यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। ईद में बहुत कम वक्त रह गया है, लोग परेशान हैं, कहते हैं कि खरीदारी नहीं करेंगे। 6 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी और वक्त हमारे पास कम है, लिहाजा रश बढ़ जाना यकीनी है। सूरत हाल के ऊपर थोड़ा गौर किया जाना चाहिए ताकि हम ईद की खरीदारी भी कर सकें और कोरोना में भी मुब्तला ना हो, इससे भी महफूज रह सकें। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, मार्केटें बंद हैं और अब लोग सवालिया निशान बने खड़े हैं कि ईद की खरीदारी किस तरह से की जाए। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर यह कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया समीन, आपने हमें आगाह किया। उधर चेयरमैन ऑल कराची ताज़ा एयरलाइंस हकीम शाह ने कारोबारी औकात बढ़ाने और हफ्ते में 2 रोज़ छुट्टी खत्म करने और ईद की छुट्टियां महदूद करने का मुतालबा भी कर दिया है।
वफ्द ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। ऑल कराची ताजिर अलायंस के वफ्द की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात हुई है और हमने मौजूदा जो कोरोना की तीसरी लहर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बातचीत की है, क्योंकि जो मार्केटों में कारोबार करने के औकात कार हैं उसको महदूद किया गया। हमने गवर्नर साहब से हफ्ते में 2 रोज़ छुट्टियां ख़त्म करने और कारोबार के औकात को बढ़ाने की हमने दरख्वास्त की है और साथ ही साथ 8 मई से 16 मई तक जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी हमने गवर्नर साहब से नज़रसानी की अपील की है, जिस पर गवर्नर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि टाइमिंग पर ज़रूर बात हो सकती है। और हमने गवर्नर साहब से ये भी गुजारिश की कि लॉकडाउन जो 8 मई से 16 मई तक किया जा रहा है इसको ईद के बाद किया जाए, ताकि इस सीज़न के टाइम पे कारोबारी औकात को बढ़ाने के साथ साथ चांद रात तक जो है वो ताजिर अपना कारोबार को जारी रख सके। कराची कोरंगी में तहरीक इंसाफ के MNA का वाटर बोर्ड के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद का मामला अब तूल पकड़ गया है। कोरंगी सब डिवीजन के अमले ने MDA वाटर बोर्ड दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुकदमा दर्ज न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी भी दे दी। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के MNA का वाटर बोर्ड के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कुरंगी सब डिवीजन के मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद काशिफ के मुताबिक फहीम खान ने साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। MNA ने कुरंगी नासिर जम के करीब वाटर बोर्ड की 33 इंच की लाइन से पानी चोरी के लिए लाइन जोड़ रखी थी। किसी भी सियासी जमात से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा राइट ऑफ वे है। मुझे जो अहकामात होते हैं जो मुझे सिस्टम चलाने के लिए और मेरे स्टाफ को जो मैं सिस्टम चलाने के लिए कहता हूँ, हम उसी तरीके से सिस्टम चलाते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वाटर बोर्ड अफसरान मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, प्रेशर देते हैं, हमें कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करो। तो ये जो वाक़या हुआ वहाँ पर, उस पर अभी MD साहब से भी बात हुई कि MD साहब आप तहफ़्फ़ुज़ देने में हमें नाकाम है। मुलाजमीन ने पानी चोरी और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त थाने और MD वाटर बोर्ड को जमा करा दी। मुकदमा दर्ज न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी भी दी। कैमरामैन हमूद के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़ कराची। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम लाने का ऐलान कर दिया है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान का कहना है कि आईनी तरामीम के जरिए बैनुल मुल्क पाकिस्तानियों को इंतखाब लड़ने का हक भी देंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन शनाख्त के जरिए करवाने के लिए भी तरमीम करेंगे और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाने के लिए रिफॉर्म्स भी तजवीज़ की गई हैं। के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में उसके अंदर 49 सेक्शंस तब्दील किए जा रहे हैं। नादरा का रजिस्ट्रेशन का ID डेटा है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो इलेक्टोरल रोल्स इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो तैयार होनी चाहिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि वो सियासतें अपना सालाना कन्वेंशन मुनक्कद करें। तो अभी आपको ले जाएंगे लाहौर, जहाँ पर फिरदौस आशिक अमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कम आमदनी वाले तबकात जो हैं वो मायूसियों का शिकार हैं। मैं उनके लिए आज इंतहाई अहम खुशखबरी लेके आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में होने वाली अहम तरीन मीटिंग में जो आज फैसले किए गए हैं, मीडिया की आंख के ज़रिए अपने उन मुस्तहिक नादार और पिसे हुए तबके को ये आवाज़ पहुंचाने आई हूँ कि ये हुकूमत जो है जहाँ आपके हकूक़ की निगहबान है, वहाँ आपकी फराहमी साहिबान जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। और आज उसकी तरफ जो मुसलसल पेशकदमी हो रही है, आज एक अहम संग मील उस सिमत में अबूर किया गया है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करते रहे हैं। इसी सिलसिले में
133 स्पॉट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत पंजाब भर में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 133 स्पॉट में फेज़ 1 में हुकूमत पंजाब जो है 54 स्पॉट्स जो हैं उनको हंगामी बुनियादों पे वहाँ सस्ते घर तमीर करने जा रही है। 32 साइट्स जो हैं इन 54 में से उनको तरजीही बुनियादों पे उनके काम का आगाज़ होने जा रहा है और 5 मई को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में लाहौर में जो है इन मंसूबों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर आज़म के हाथों होने जा रहा है। 10 स्पॉट्स जो हैं उनको वर्चुअली ऑन स्पॉट वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी वहाँ इनागुरेशन होगी और जिन 10 स्पॉट को प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत 5 मई को हम इनागुरेट करेंगे, उसमें जो है वो चिन्योट है, लाहौर है, डीजी खान, खुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा, खानेवाल, ये वो 10 स्पॉट होंगे जो यकलख्त फिल फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब के एक बटन दबाने से इन अजला में भी ये सस्ता अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये आपके जो 32 तहसीलों में 10,000 के करीब जो हैं वो घर पहले मरहले में हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम पेशरफ्त है कि ये जो घर है इनके लिए हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपया जो है हुकूमती एक्सचेकर से इस मंसूबे के लिए मुख्तस कर चुकी है। ये घर जो है वो 3 से, क्योंकि इब्तदाई तखमीना जो है इन घरों का वो 3 मरले का लगाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आज ये फैसला किया गया कि इनको 3.5 मरला पे मुंतकिल कर दिया जाएगा और ये स्कीम जो है अब 3 की बजाय 3.5 मरला के घर पे मुश्तमिल होगी। इसके अंदर जो है वो हुकूमत पंजाब 3 अरब का रिवॉल्विंग फ़ंड देगी और उसके साथ साथ ये हमारा जो 14,000 से लेके 30,000 तक की जो आमदनी वाला तबका है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होगा और टोटल इस घर की कीमत जो हुकूमत ने मुकर्रर की है वो 14,30,000 है और 30,000 से 50,000 तक का जो तबका है वो मुस्तफ़ीद होगा। इसके अलावा जो है वो जो हमारे पंजाब बैंक की मुआवनत और बाकी 11 बैंक्स जो हैं वो कंसोशियम के ज़रिए इस स्कीम में हिस्से इतराज़ फिज़ा आशिक अमान इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। राशन तकसीम करने की वजह से वहाँ बॉर्डर एरिया पे मैं नहीं देख सकी कि किस किस को बदहज़मी हुई है। तो बाद में जब लेट नाइट 11 बजे के करीब मुझे पता चला तो मेरा सबसे पहला जो रिएक्शन था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से एडवाइस ली जाए कि मुझे मीडिया में क्या कहना है और किस तरह कहना है और उसके बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुआवनत ली जाए कि क्या इस मैच में कूदना है या हमने मैच को बाहर बैठ के ग्राउंड से देखना है। तो मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की शुक्रगुज़ार हूँ और वज़ीर आज़म इमरान खान की कि उन्होंने अवाम दोस्त जो सोच है, जो पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा उनका एजेंडा है,
اور عوام کو ریلیف دینے کا ان کا جو عزم ہے، انہوں نے عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا حق ادا کرتے ہوئے رمضان بازاروں میں جو افراتفری، ناقص اشیاء خرد و نوش کی فراہمی اور عوام کی سہولت کاری کی بجائے ان رمضان بازاروں میں جو استحصال ہے اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب اور مجھے جوائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تمام جو ہمارے پنجاب بھر میں رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے چینی لائنوں میں لگا کے جو عوامی استحصال ہے اس پہ وزیر اعلیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم نے چینی ان سٹالز پہ لائے ہیں، حکومت نے 65 روپے اس چینی کے لیے سبسڈی دی ہے، ایکس میل پرائس جو ہے وہ 85 روپے 80 روپے اور ریٹیل پرائس ہماری 85 روپے، تو 20 روپے فی کلو حکومت سبسڈی دے رہی ہے اپنے ان شہریوں کو کہ وہ آئیں اور وہ چینی لیں۔ اگر وہاں لائنوں میں لگا کے سارا دن روزہ داروں کو 1 کلو چینی کسی ضلع میں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا انحراف ہے۔ اسی بات جو رمضان بازار کے اندر سب سے پہلے پھر دعا شکوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کریے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔